विद जमात और विदाउट जमात? जमात सर। शाबाश। Okay, this is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih kareem. The topic is indices and powers, standard form. And we have completed the last topic. So indices is not a difficult topic, but there are some rules to follow so that we can easily work out the answer or evaluate the answer. So you can see when the bases are same, we will add the powers. If if the numbers are being multiplied. In division, if the bases are same, we subtract the powers. Clear? उसका आप खामोश हो जाओ क्लियर। थोड़ा. Okay, wait a minute. We have electricity failure. So we start the exercise. So the negative power, when we have a negative power, what do we do? Can you explain it, or you want some explanation? um Negative powers can be solved by making the number. We change the place of the number from numerator to denominator and denominator to numerator. For example, if we have a number like 1 over 3 power minus 1. So if we change its place and we move it from denominator to numerator, so it will become 3 power plus 1. Okay, and if we have a number which is with negative power and it's in the numerator, so when we change its place from numerator to denominator, it will become 1 over 3. Clear? So can you tell me the answer of the second one, part B? किताब खोलो सर, एक मिनट। Part A, my answer is 1 upon 3. Part B is 1 upon 25. Part C is 1 upon 6. And part D is 1 16. upon 16, sorry. 16. Part D is 3 upon 2. Part E is 8 upon 1. Part D is 2 upon 3. 3, 3 2 upon 3 माइनस थे तो हम अच्छा, मैं सवाल गलत लिखा था। सवाल में 2 upon 3 में लिखा था। अच्छा, आपने सवाल गलत. ठीक है. So its answer is 8. क्वेश्चन E part 8. 8 upon 1 सर। 1 or 8. 8 upon 1 is equal to 8. अच्छा जी, ये सब भी आपने कर लिया था? क्वेश्चन 2 ABCD कर लिया था सर। ठीक है, तो मुझे ये सी का बता बस। दो पहले. जी सर, क्वेश्चन 2 मुझे ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया था। कौन सा वाला? ओके ओके, आई विल डिस्कस.
So in case of division, we just subtract. Division, in division, you can see 5 power 1 and 5 power 3. Okay. So when we change the denominator to numerator, its power will be negative like this. And when we add it, so 1 minus 3. So the answer is 5 minus 2, and the final answer is 1 over 25. ठीक है, एक तो ये था। और इसका जो दूसरा ऊपर उसने रूल बताया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन में जो होता है ना, वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, 2 raised to power 5 divided by 2 raised to power -3. So there is a minus sign between it. In multiplication, we plus. If the bases are same and the numbers are in multiplication, so we will add the powers with the same base. If the bases are same and numbers are being divided, so we will subtract the powers. So 5 minus -3 is equal to 5 plus 3 and equal to 8, and we change it. So we can do like this. For example, this one is this. So 5, 3 minus -2. So like you can see, 5, 3 plus 2 is 5. So इस वाले में भी आप अगर इस तरह से करते हो, जो कि उसने रूल बताया है कि 5, 1 -3, so you can write directly ये 5 -2 do the by. So 1 over 5 square, and the answer is 1 over 25. Clear? जी। So can you tell me the answer of part D? Question two part is right. Yes. 49, sir. Good. Very good. And part F? Part F is 256. 2 power 8 is equal to 256. Okay. And okay, we move to 3B. 3B. 3B is 1 upon 9. 1 upon 9, sir. How? 3 minus 5 plus 3. 1 upon 9. Good. And in part D? Quantity is uh 2 minus -2. So it will be equals to 4 with the 3, power 3. of Base. 256. So the base is 3, okay. 2 minus -2. 4, 4. 81, sir. ठीक है. And F? F multiply, so we are basically adding the numbers. So it's showing like 0, sir. Answer is 0. No, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 1. power 0 is equal to 1. Very good. Move to question number 4. Mm, for C,
4c, so going around 4 into 2, 4 into minus 2, which is minus 8, and minus 8 minus 6 equals to minus 2, which is equals to minus 25. Minus minus, which gives plus 2, it is 25. हाँ, -8 and +6, 1/25। ठीक है। बराबर है। जी। रूल्स ऑफ इंडाइसिस, बी, ये बी पार्ट है, इसमें स्क्वायर रूट लेकर आया है वो। सो स्क्वायर रूट इज क्लियर, फोर्थ रूट एंड थर्ड रूट, क्यूब रूट एंड स्क्वायर, फिफ्थ रूट। जी। ठीक है ना, ये तो क्लियर है। और ये पावर की फॉर्म में भी आपको क्लियर है कि ये फिफ्थ रूट होगा तो 1/5 पावर बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। पावर इज द नंबर इन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ये वाला क्लियर है ना, ये वाला, ये कि जो जी सर। 2 है वो पावर बन जाती है और 3 जो है वो क्यूब, यानी कि क्यूब रूट, जैसे कि ऑन अ कैलकुलेटर we can raise a base number to any index buttons। कैलकुलेटर में भी आता है आपको करना, ठीक है। ये देखें आप, ये इसको किस तरह लिखेंगे हम, पहले हम 8 दबाएंगे, देन दिस बटन, ये बटन होता है y⁻x का, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या कह रहे हैं, वी कुड एंटर ए टू इन, फिर 3। अच्छा, ये साइन को इसने इस तरह से किया है, 12। ओके, वी मूव टू द एक्सरसाइज। जी, evaluate the following, give your answers to questions 1 to 3 as ordinary numbers। तो 1 तो कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें से आप कोई बताएं, कोई सा हो जाए। अच्छा, इसमें बेसिस डिफरेंट है ना, बेसिस जी डिफरेंट है, सर। तो कैसे होगा ये, बताएं फर्स्ट पार्ट। बेसिस डिफरेंट है, तो हम इनको बस ऐड कर देंगे, दोनों ये ऐड कर देंगे पावर, और बेसिस को हम शायद मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, पावर्स को हम ऐड नहीं करेंगे, हम इसको यूं कर बेस को सकते मल्टीप्लाई। हैं, 3 × 4 विद द सेम पावर। सही है ना, एक तो ये है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि 3 का स्क्वायर निकाल लेते 9, और 4 का स्क्वायर निकाल लेते 16, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो भी हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है ना, यानी 160 में से 150 और 144, और ये वाला है, यानी कि 3 4 12 का स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास 144 आ जाएगा। सही है ना। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये रूल है कि अगर पावर्स सेम है, सो बेसिस को फिर हम लोग क्या कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे विद द सेम पावर। अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ हो जाएगा, और डिवीजन के साथ है तो डिवीजन के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा सेकंड में, पार्ट बी। हम्म। व्हाट,
पार्ट बी में ये होगा कि हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट में 2 into 5 डाल देंगे, और हम पावर को 4 वाली लेंगे। सेम लेंगे पावर। सबसे छोटी वाली पावर लेते हैं ना सर? पावर सेम है, देखो पावर सेम रहेगी इसमें। सेम नहीं हो अरे सकता ये। अगर ये इस तरह होता 2 3 और 5 2, तो हम इसको यूं नहीं कर सकते थे। नॉट पॉसिबल। ये सेम पावर में हम ये कर सकते हैं। ये वाला अच्छा। काम जो हम बेसिस को यानी कि कलेक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर देते हैं, वो सेम पावर की ही कंडीशन में करेंगे। अगर डिफरेंट पावर होगी वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, देखो सब में सेम है पावर। पावर सेम होने की वजह से हम इसको एक साथ करें। सो 10 is power 4 is equal to 10,000, यस सर सर। 10,000। जी। सर डिवीजन में क्या होगा कि डिवीजन में भी सेम होगा, डिवीजन के साइन के साथ हो जाएगा। सही है, 5 3 times 15 है, 3 4 81। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, विद द सेम पावर। तो क्या हो सकता है इसमें, आप बताओ क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4/3 हो जाएगा। सही है, इसके यानी हमने ये इसको यूं लिखे अगर 3 डिवाइड बाई 4 और उसके ऊपर लगा दें हम -1, तो +1 के साथ क्या हो जाएगा ये 4/। सही है। ठीक है, ये आंसर। जी। और अगर से इसने पता नहीं इसने मिक्स नंबर में इसने दिया है तो फिर उसको 114 113 कर दो। अब इसका आंसर मैंने भी नहीं देखा, आंसर खोलना ही पड़ेगा। 1.7 का भी नहीं, इसने वो नहीं किया है, मिक्स नंबर में नहीं किया है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसका आप बता दें, अब लास्ट वाले का पार्ट ई का आप बता दें क्या होगा आंसर। यू कैन जी सर। टेल मी द पार्ट ई डेफिनेट का आंसर। पार्ट ई का हो जाएगा 9/4। 9/4, वेरी गुड। ठीक है, उसका आप बहुत श्योर कर लियो। अच्छा, अब यहाँ पर है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी यानी पावर को हमें सॉल्व करके और आंसर निकालना है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब तो क्लियरली स्क्वायर रूट है ना। और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 1 10 पावर 1 इक्वल टू 10। सही है, इसका बताएंगे आप 4 पावर 3/2 क्या। जी, इसका बताओ बेटा। सही। तो सर आवाज आ रही मेरी? अब आइए, हाँ। कौन सा? ये 4 पावर 3/2। 8। जी, 8 नहीं नहीं, 8।
8 टू की पावर, हाँ सही है, 8 इज आंसर। यहाँ पर क्या हुआ? 2 जी। पावर सॉल्व हो जाएगी इसमें, है ना? जी। सो इट विल बी 3, 2 3 is 6, और 9 9 is 81, 9 1 is 9, 9 8 is 70। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा एफ वाले में? पार्ट एफ। जी, इसमें किस तरह होगा ये? अरे यार, इंचू, ये इसको को मना करो, उनको फोन कर रही है वो। जी, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है कुछ? सही में आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझको। हेलो हेलो, आवाज आ रही सर? अब आ गई, हाँ। क्या मसला क्या हो रहा है? इंटरनेट का मसला है या माइक वाइक का मसला है? हाँ ना सर। 64। ये 1/5 है सर। 1/3 है, 3 है, सॉरी। अच्छा। ये हो जाएगा 0.25। हाँ, 0.25 फ्रैक्शन में। 1/4। हाँ, सही है। 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मेरा ख्याल आंसर इसका इसने वही दिया है। 1/4 दिया है इसका आंसर, ठीक है, फ्रैक्शन में दिया है। अच्छा जी, इसके बाद चलिए एच पार्ट भी कर दें। पार्ट एच। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर वो कर रहा हो सर मैं। अच्छा, जी सर, पार्ट एच का मेरा आंसर आया है
क्या बोलते हैं ये? फ्रैक्शन में। सर ये दोनों भी माइनस होते हैं ना? जी। जी फ्रैक्शन में आ रहा है 16 है सर, 16। 1/16 ना। जी। सही है, सही है। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं ये 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसमें अब उन्होंने थोड़ा सा हिला दिया है। तो इसमें क्या होगा, पहले पहले में सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट है। 1/2 पावर का मतलब है स्क्वायर रूट है। और 1/3 पावर का मतलब है क्यूब रूट है। ठीक है ना। तो आंसर इज क्लियर। क्या होगा आंसर? जी अ, इसका आंसर हो जाएगा 16 है सर ये। 16 का जी 1/2 है। 16। बाद में इसको और मल्टीप्लाई करना 27 से, इसकी पावर भी इतनी बड़ी लंबी। 12। 12 सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने पावर 2/3 दे दी। तो इसमें क्या होगा भाई? सेकंड पार्ट। क्या है इसका? जी सर इसका 36 है सर।36। ये मेरे हिसाब से तो 4/9 आएगा। ठीक है। मिस्टेक समझ आ गई। जी सर। चलिए अब ये वाला करें। आप जहाँ कहीं भी कर रहे हैं, स्टेप्स को जितना ज्यादा करेंगे ना स्टेप्स को, आपका आंसर सही रहेगा। अगर शॉर्टकट में करेंगे तो मिस्टेक का चांस ज्यादा होता है। शॉर्टकट में हम जब करते हैं जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब बहुत सारी हमने प्रैक्टिस कर ली होगी, फिर हमें शॉर्टकट में करना स्टार्ट करना है।
जी आपने किया ये? यू आर टेकिंग टू मच टाइम। ठीक सर, कर रहा हूँ। थोड़ा दिमाग नहीं लगा था। मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपने स्टेप बाय जी। स्टेप। एक हजार छह सौ सर। अच्छा, तो क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? फोर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा फाइव पे, जब क्यूब से क्यूब टकराएगा कट जाएगा। नहीं, यहाँ पे फिर गलती की है। 16/25 आ रहा है इसका। अब अगर आपके पास वो है, 10 टैबलेट है, तो आप उसको स्क्रीन पे करो तो फिर टाइम का बताइए सवाल क्वेश्चन 3 का। हाँ, एक मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे अभी। ये 2 की जगह यहाँ पर है ये 3 है। एंड 4 का क्यूब 64 होता है। यही आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप्स बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे कि पहले आप 4 के स्क्वायर बनाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये पॉइंट टू से 2 से क्यूब कर दिया, तो ये 4 क्यूब आ गया। सही है। फिर 5 का क्यूब जब बनाओगे, 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप -2/3 से। 3 से 3 किया तो 5 स्क्वायर बन गया। आपको नेगेटिव पावर है तो वो नीचे चली जाएगी, और पॉजिटिव 3 है वो 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64 हो जाए। सही है। अब आपको इसका डी पार्ट भी करना होगा, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स काफी आ रही हैं। डू पार्ट डी। मैंने आपको पूछा था, if you have the UG tablet, so you can use that for writing the steps. I can see the step where you are doing the mistake. जी सर। फिलहाल तो यूगी टैबलेट नहीं है सर, वो भाई इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो करो, आप कॉपी में ही करो, वहां कोई से तो छोड़ दो, आप कॉपी में करो।
ये क्या आंसर है आपका? ये सर मेरा आंसर आया है सर, क्या बोलते हैं ये, एक मिनट सर, मेरी कॉपी ये, एक मिनट मेरी कॉपी सर। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ये डिवीजन भी है, जरा इसका ख्याल कीजिएगा आप। जी सर, मेरा 3 आ रहा है सर। हाँ, 3 आएगा। सही है। चलें, आप ये करें आपके। हम्म ई पार्ट भी कर लें। जी सर, ई पार्ट का आ रहा है 27/8 सर। अच्छा जी, 9 क्यूब हो जाएगा। और 6 - 3 हो जाएगा। तो 9 × 9 × 9, 6 × 6 × 6। तो क्या है आपका आंसर? 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 27/8। 27/8 बिल्कुल सही आया आपका। ठीक है, अब ऐसा करें आप का आगे एच पार्ट देखें, ये एच पार्ट कैसा हो, एच पार्ट।